Welcome to Homo Mind, where we turn pain into plot twists. Buckle up, folks. कभी-कभी रेमेडी से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान वही रहता है. Spoiler alert. No one gets a personality transplant here. Picture this. एक आदमी मेरे पास आया, डाइजेशन की ऐसी प्रॉब्लम लेकर जैसे उसने एंटायर बफे अकेले खा लिया हो. उसका हार्ट बर्न इतना ड्रामेटिक था कि लगता था जैसे उसके गले में बीबीक्यू चल रहा हो. नो ग्रिल रिक्वायर्ड. रात को नींद? फॉरगेट इट. His brain was running a 24/7 office, tasks, deadlines और अधूरे emails का non-stop rerun. Meet our hero. एक high-powered executive, तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान. Basically, the human version of an espresso shot. His life, deadlines, black coffee और late-night business dinners like a Bollywood montage, but with more acidity. Staff से irritable, family से impatient और जो उसकी speed पकड़ ना पाए, उस पर criticism की बारिश. He's basically the Simon Cowell of the office. Classic nux vomica, ambition और intensity के साथ bring पर. अगर Oscars में most stressed category होती, he'd win hands down. Enter the remedy. धीरे धीरे उसके physical symptoms ने exit stage left लिया. Heartburn, gone. अब वो पूरी रात सोता है जैसे नेटफ्लिक्स बिंज के बाद फाइनली कोई सीजन फिनाले मिल गया हो. Years later, he finally feels well-being, and no, it's not just because he switched to green tea. Energy returns. Not the caffeine-crazed kind, but the steady, reliable, I can handle this kind. Marvel would call it a superpower. Grateful? Absolutely. Remedy को periodic guest appearance मिलती रही, like a cameo in every sequel. Gastritis, insomnia, frayed nerves. Remedy ने सबको box office flop बना दिया. Case closed, right? But wait, plot twist, what didn't change? He's still driven, direct, and sometimes a little difficult. Think Tony Stark minus the suit. Sorry folks, he didn't turn into a gentle monk overnight. No magical patience potion here. Still, the king of pointing out inefficiencies, office typos beware, waiting in line. Still hates it. Foolishness, zero tolerance, some things never change. Remedy didn't erase his personality, it just sanded down the rough edges. Think makeover, not reboot. Suffering turned to strength, exhaustion to productive energy, like a superhero origin story. Minus the radioactive spider. Still Nux Vomica, but now a healthy one. No longer a victim of his own internal fire. Fireproof suit not included. So what's the morale of this cinematic saga? Constitutional prescribing isn't about rewriting the script. The goal isn't a personality swap. No Freaky Friday moments here. We're not turning tigers into lambs. Sorry, Disney fans. The aim? Restore balance, so your true nature shines in a healthy, constructive, Oscar-worthy way. The Nux Vomica character, with all that intensity and drive, plays a vital role in the world. Every blockbuster needs its action hero. The remedy just helps you play your part, without burning out before the credits roll. It channels that immense energy away from illness and straight into smashing your goals, with vigor, clarity, and maybe a little popcorn on the side. Curtain call. Ladies and gentlemen, meet the Nux Vomica individual, one of the most instantly recognizable characters in our Materia Medica universe. If there were an Oscar for most likely to take charge and scare the interns, this person would win, twice. These are the action heroes of daily life. Ambitious, fiery, and moving with the intensity of someone who's just realized their phone is at 1% battery. You know the type. Usually lean, always in motion, and powered by an invisible espresso machine, they zip around like there's a prize for most steps in a day. Spoiler, there isn't, but don't tell them. Their minds, even faster, they process information at warp speed and reach conclusions before you've even finished your sentence. If you blink, you'll miss it. Practical and grounded, they have zero patience for abstract theories or emotional drama. If you start quoting poetry, they'll probably hand you a spreadsheet. Results? They want them. Now. Yesterday, if possible. Waiting is not their superpower. This impatience is their signature move. If impatience were an Olympic sport, they'd have more gold than Michael Phelps.
choleric, type A, or just the one who makes coffee nervous. Call them what you will, they're always ready for action. And yes, they get cranky. When things don't go their way, expect a dramatic sigh or two, or 10. Watching a nux vomica person wait for a slow computer is like watching a volcano about to erupt, except with more finger tapping and less lava. Expect rapid-fire finger taps, dramatic sighs, and the occasional muttered monologue. Shakespearean, but with more caffeine. But don't worry, they're not evil masterminds. Their anger is more reactive firecracker than supervillain plot. It's a quick spark, here 1 second, gone the next. Like a WhatsApp notification you accidentally swipe away. Unlike Natrum muriaticum, they don't hold grudges. Their anger is a passing storm, sudden, loud, and then poof, clear skies and awkward apologies. Beneath that sometimes sandpaper exterior, a heart of gold, or at least gold-plated loyalty. Nux vomica folks are fiercely protective of their tribe. Think Mama Bear, but with more spreadsheets. Affection? They show it by fixing your Wi-Fi, not by writing you poetry. Practical love is still love, right? They'll work tirelessly to make sure their loved ones have every comfort, sometimes even before you realize you need it. Emotional nuance? Maybe not their strong suit, but loyalty? Unbreakable, like their Wi-Fi password. In a crisis, they're the rock, the one who takes charge while everyone else is busy panicking or Googling how to stay calm. Their directness, it's both their superpower and their kryptonite. Use with caution. In business, their let's get to the point attitude is priceless. Meetings end early and everyone gets to lunch on time. Miraculous. They're not afraid to drop a truth bomb, even if it makes things a little awkward. In social settings, this can come off as rudeness, or as that person who just said what everyone was thinking but shouldn't have. They might interrupt, finish your sentences, or dismiss your brilliant idea before you've even finished explaining it. Sorry, not sorry. Offense isn't the goal. They just value efficiency over etiquette. If feelings get bruised, well, there's always ice cream. Or a motivational spreadsheet. नक्स वोमिका का दिमाग एक फाइन ट्यून्ड मशीन है जो एफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनी है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड का गैजेट्स के साथ रिश्ता। इन लोगों के पास एक तेज एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है जो उन्हें किसी भी सिचुएशन के मूविंग पार्ट्स को देखने में हेल्प करती है, जैसे शर्लक होम्स अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। वे बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट और प्लानर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स को पहले से देखने में कैपेबल होते हैं, जैसे कि एक मास्टर चेस प्लेयर। वे वेग पॉसिबिलिटीज में नहीं खोते, उनकी सोच कॉन्क्रीट और गोल ओरिएंटेड होती है, जैसे कि एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट। नक्स वोमिका से कोई प्लान मांगो और आपको एक्शन के लिए एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट मिलेगा, जैसे कि एक शेफ की रेसिपी। वे उन चैलेंजेस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जो उनके इंटेलेक्ट को एंगेज करते हैं और उन्हें अपनी कंपीटेंस दिखाने का मौका देते हैं, जैसे कि एक पजल मास्टर। हालांकि इस मेंटल क्विकनेस के साथ दूसरों की सुस्ती के लिए एक गहरी इंटॉलरेंस भी आती है, जैसे कि एक रेस कार ड्राइवर ट्रैफिक में फंस गया हो। वे उन क्लीग्स या फैमिली मेंबर्स से बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं जो ज़्यादा धीमी गति से सोचते या काम करते हैं, जैसे कि एक तेज़ इंटरनेट यूज़र स्लो वाईफाई पर। वे इसे एक अलग स्टाइल के रूप में नहीं बल्कि एक डिफेक्ट के रूप में देखते हैं, जैसे कि एक परफेक्शनिस्ट। बस पॉइंट पे आओ, ये उनकी साइलेंट और अक्सर अनसाइलेंट रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि एक मूवी डायरेक्टर का कट टू द चेज। ये इम्पेशेंस उन्हें मुश्किल टीचर्स या मेंटर्स बना सकती है, क्योंकि उनमें उन लोगों को कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझाने की पेशेंस की कमी हो सकती है जो उन्हें तुरंत नहीं समझते, जैसे कि एक सख्त कोच। वे उम्मीद करते हैं कि हर कोई उनकी अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करे, जैसे कि एक हाई स्पीड ट्रेन। नक्स वोमिका एक निश्चित मेंटल रिजिडिटी के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि एक स्टील की रॉड। एक बार जब उनका मन बन जाता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है, जैसे कि एक पत्थर की लकीर। वे अपने खुद के जजमेंट पर पूरा भरोसा करते हैं और अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को बिना सही से कंसीडर किए डिसमिस कर सकते हैं, जैसे कि एक जज का फैसला। ये एरोगेंस से पैदा नहीं होता, जैसा कि हम सल्फर में देखते हैं,
बल्कि अपनी खुद की लॉजिकल प्रोसेसेस में एक गहरे विश्वास से आता है। जैसे कि एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने डेटा का एनालिसिस किया है और एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, उनके लिए केस क्लोज्ड है। जैसे कि एक डिटेक्टिव का केस सॉल्व। ये उन्हें जिद्दी या क्लोज्ड माइंडेड दिखा सकता है, खासकर जब वे ज़्यादा फ्लेक्सिबल या क्रिएटिव पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे कि एक रॉक ऑन रोल बैंड में एक क्लासिकल म्यूजिशियन। इस इंटेंसिटी के बावजूद नक्स वोमिका के दिमाग में लगातार मेंटल एफर्ट करने की शानदार कैपेसिटी होती है, जैसे कि एक मैराथन रनर। वे टिपिकल वर्कहॉलिक्स होते हैं जो डेडलाइन को पूरा करने या किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देर रात तक काम कर सकते हैं। जैसे कि एक नाइट शिफ्ट डॉक्टर। यह अक्सर कॉफ़ी जैसे स्टिमुलेंट्स से बढ़ता है, जिसकी उन्हें अपने दिमाग को तेज़ और अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए क्रेविंग होती है। जैसे कि एक जेट इंजन को फ्यूल। एक्सटर्नल प्रॉप्स पर यह डिपेंडेंस नर्वस एग्जॉशन की स्टेट तक ले जा सकती है, जहां दिमाग काम करना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाता। जैसे कि एक ओवरहीटेड कंप्यूटर। अक्सर बर्नआउट के इसी पॉइंट पर वे अपने एलिमेंट्स के लिए हेल्प लेते हैं, जैसे कि एक सुपर हीरो अपने साइड किक से। एक बार जब आप नक्स वोमिका टाइप को पहचानना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आप उन्हें हर जगह देखने लगते हैं, क्लासिक लिटरेचर के पन्नों में और हाँ, उन किताबों में भी जो आपने सिर्फ शो ऑफ के लिए शेल्फ पर सजा रखी है। चलिए मान लीजिए आपने भी कभी कभी किताबें सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए खरीदी हैं, और इतिहास के उन मशहूर लोगों में भी जिनकी मूंछें देखकर ही डर लग जाए। ये लोग इतने ड्रिवन और कॉम्पिटेंट होते हैं कि अगर टाइम मशीन मिल जाए तो शायद खुद को भी मैनेज कर लें। आपके बॉस जैसे, लेकिन कम डरावने या शायद ज्यादा। मिस्टर जैगर्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के वो वकील जिनका गुस्सा देखकर लगता है जैसे किसी ने उनका लंच चुरा लिया हो। सीरियसली, इनसे बहस करने की हिम्मत चाहिए। ये हैं रूथलेसली एफिशिएंट, शार्प विटेड और पूरी तरह से अनसेंटिमेंटल, जैसे आपके टैक्स अकाउंटेंट जो आपकी हर गलती पकड़ लेते हैं। और हाँ, स्माइल भूल जाइए, इनकी शेयर कॉम्पिटेंस और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस से लोग इन्हें सम्मान देते हैं और शायद सीक्रेटली डरते भी हैं। एडमिटेड, आप भी ऐसे किसी को जानते हैं। इनके पास इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। क्लाइंट्स से डील करते हैं जैसे रियलिटी टीवी शो के जज। नेक्स्ट। और अगर आप रोने लगें तो टिश्यूज खुद लाना पड़ेगा, लेकिन काम में अनडिनाइबली इफेक्टिव। और हाँ, थोड़ा सा डरावने भी, जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड पर लाल स्याही। इतिहास में चलते हैं यूलिसीज एस ग्रांट, वो जनरल जो हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने उनकी कॉफी छीन ली हो। ग्रांट अपनी टेनेसिटी और युद्ध के प्रति अनयील्डिंग डायरेक्ट अप्रोच के लिए फेमस थे। जैसे एक्शन मूवी के वो हीरो जो कभी मुस्कुराते नहीं। वो फ्लैशी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे, बल्कि ब्लंट और प्रैक्टिकल लीडर थे। जैसे स्पोर्ट्स कोच जो सिर्फ प्रैक्टिस चिल्लाते हैं। कम बोलने वाले, पॉलिटिक्स से इम्पेशेंट और डिसाइसिव एक्शन के दीवाने, जैसे एक्शन मूवी के डायरेक्टर जो सिर्फ कट बोलते हैं। ग्रांट की डिटर्मिनेशन और हार न मानने की जिद नक्स वोमिका स्पिरिट का असली रूप है। शेयर विल पावर से बाधाओं को तोड़ना, चाहे कीमत कुछ भी हो। जैसे सुपर हीरो मूवी का विलन जो कभी हार नहीं मानता। अब मिलिए जूलियन सोरेल से, द रेड एंड द ब्लैक का वो एम्बिशियस लड़का जो हमेशा लगता है जैसे किसी ने उसकी एम्बिशन में कैफीन मिला दी हो। जूलियन हम्बल बैकग्राउंड से आया, लेकिन उसकी एम्बिशन और कनिंग सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए रेडी, जैसे रियलिटी टीवी शो का कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते एलिमिनेशन से बच जाता है। इंसल्ट्स के लिए सुपर सेंसिटिव, जल्दी गुस्सा और हर वक्त प्लॉटिंग, जैसे सोप ओपरा का विलन जो हर एपिसोड में नया प्लान बनाता है। अंदर से पैशन, प्राइड और कैलकुलेशन का तूफान, जैसे ड्रामेटिक मूवी का हीरो जो हर सीन में इंटेंस म्यूजिक चाहता है। जूलियन सोरेल दिखाता है नक्स वोमिका का डार्कर, जेलस साइड, एम्बिशन जो पावर और स्टेटस के लिए ऑब्सेशन बन जाती है। जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर का कैरेक्टर जो खुद से भी डरता है। ये आर्केटाइप्स हमें नक्स वोमिका पर्सनालिटी के अलग अलग फॉर्म्स दिखाते हैं। सिर्फ लीडर्स या जनरल्स नहीं, डिमांडिंग शेफ, ब्रिलियंट लेकिन डिफिकल्ट सर्जन, या वो स्मॉल बिजनेस ओनर जो 18 घंटे काम करता है। जैसे रियलिटी टीवी शो का जज जो कभी खुश नहीं होता। इन सबको जोड़ती है उनकी इंटेंसिटी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और अनशेकेबल ड्राइव। ये हैं दुनिया के इंजन्स
जो अपनी टायरलेस एनर्जी से सबको हिला देते हैं। और हाँ, रास्ते में कुछ लोगों को नाराज करना तो इनका बोनस फीचर है। प्रेजेंस ऐसी कि भूलना मुश्किल, जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टार। तो ये थी नक्स वोमिका फिगर की कहानी, हर जगह, हर रूप में और हमेशा यादगार, जैसे एपिक मूवी का लेजेंड जो कभी फेड नहीं होता। एंड सीन प्रोफेशनल दुनिया में नक्स वोमिका पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर बॉस की कुर्सी पर ऐसे बैठते हैं जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स का आयरन थ्रोन हो। इनकी नेचुरल ड्राइव, एम्बिशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखकर एचआर भी सोचता है, भाई ये तो बॉस बनने के लिए ही पैदा हुए थे। ये वो मैनेजर हैं जिन्हें ऑफिस की हर फाइल, हर पेन और शायद आपकी लंच ब्रेक टाइमिंग तक याद रहती है। ऐसे सीईओ जो मार्केट ट्रेंड्स को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे स्पाइडरमैन अपनी वेब, सबसे पहले, सबसे तेज और एंटरप्रेन्योर। भाई ये तो स्क्रैच से एम्पायर खड़ा कर देते हैं। तो शाहरुख खान वाला डायलॉग याद है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, बस वही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, बाकी लोग पसीना पसीना, ये बंदा ब्रिंग इट ऑन। डेडलाइन, कंपटीशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इनके लिए स्ट्रेस नहीं, प्रोटीन शेक है। इनकी इंटेंसिटी और फोकस देखकर टीम सोचती है, भाई ये इंसान है या रोबोट। लेकिन इनका लीडरशिप स्टाइल है एक डबल एज्ड सोर्ड, एवेंजर्स का थॉर वाला, जो कभी कभी बिजली भी गिरा देता है। जितने ये कॉम्पिटेंट हैं उतने ही क्रिटिकल और डिमांडिंग भी। परफेक्शन चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। गलती, पेशेंस, भूल जाओ। गलती हुई तो डायलॉग मिलेगा, तुमसे ना हो पाएगा। टीम से भी वही परफेक्शन चाहिए जो खुद से। अगर मैं रात 2 बजे काम कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। ये भूल जाते हैं कि सबकी बैटरी डुरासेल नहीं होती और सबको डिटेल्स में डूबना पसंद नहीं। नतीजा, ऑफिस में माहौल ऐसा कि मिशन इम्पॉसिबल का साउंड ट्रैक बज रहा हो। डर और एंग्जाइटी हर कोने में। एम्प्लॉय इनोवेशन या रिस्क लेने से डरते हैं, कहीं बॉस ने डांट दिया तो। नक्स वोमिका मैनेजर एफिशिएंसी के लिए ऐसे ऑब्सेस्ड जैसे बच्चा चॉकलेट के लिए। प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन, कॉस्ट कटिंग, आउटपुट बढ़ाना, इनका फेवरेट टाइम पास। नए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सबसे पहले ट्राई करेंगे। और मेंटल हेल्थ डे, अरे वो क्या होता है मेंटल हेल्थ डे अप्रूव करना। अरे छुट्टी चाहिए, एक्सेल खोलो, छुट्टी भूलो। बॉटम लाइन पर फोकस, सक्सेस मिलती है लेकिन मोरल की कीमत पर। टीम, कौन सी टीम? टीम बिल्डिंग या ऑफिस पार्टी? टाइम वेस्ट, काम करो, सेलिब्रेशन बाद में। इनका मोटो, कड़ी मेहनत करो, रिजल्ट खुद बोलेंगे, और अगर नहीं बोले तो मैं बोल दूंगा। ह्यूमन एलिमेंट, वो क्या होता है, खाने की चीज है क्या? एक पेशेंट, लॉ फर्म का पार्टनर, पूरा सूट्स का हार्वे स्पेक्टर, लेकिन बिना स्माइल के। उसने मुझसे कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब मेरे जूनियर एसोसिएट्स रैम्बलिंग करते हैं। मुझे फैक्ट्स, प्रेसिडेंट और स्ट्रेटजी चाहिए, नेटफ्लिक्स की कहानी नहीं। लाइफ स्टोरी, सेव इट फॉर कॉफी विद करान। ब्रिलियंट माइंड के लिए रेस्पेक्ट, लेकिन गुस्से के लिए डर। हल्क मीट्स शर्लॉक होम्स। फिर आया नक्स वोमिका, मेडिसिन नहीं, एंगर मैनेजमेंट का सीक्रेट सीरम। गुस्सा थोड़ा कम, अब ऑफिस में कबीर सिंह कम, रणबीर कपूर ज्यादा। डायरेक्ट और डिमांडिंग तो अभी भी, लेकिन अब जूनियर की फंबलिंग सुन सकते हैं बिना डायलॉग कट किए, बिना यू आर फायर्ड बोले। कोर पर्सनालिटी वही, लेकिन अब डिस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन की जगह थोड़ा फील गुड मूड, जैसे मूवी का हैप्पी एंडिंग। चलिए नक्स वोमिका को उसके दोस्तों से कंपेयर करके देखते हैं। ये एकदम वैसा ही है जैसे एवेंजर्स की टीम में कौन सबसे कूल है, ये डिसाइड करना। वैसे तो उनमें कुछ ट्रेट्स एक जैसे हो सकते हैं, पर उनके अंदर की मोटिवेशंस और स्टाइल्स बहुत अलग होते हैं, जैसे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। सल्फर को ही ले लीजिए, वो भी एम्बिशियस और इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन सल्फर वाले लोग ज़्यादा फिलोसोफर और थियोरिस्ट होते हैं, जैसे वो लोग जो हर बात पर टेड टॉक दे सकते हैं। उनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एंडलेसली बात कर सकते हैं, पर अक्सर उनमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं होते जिससे वो उन आइडियाज़ को पूरा कर सकें। बेसिकली वो लोग जो एक दिन कहकर सब छोड़ देते हैं। नक्स वोमिका इसके ऑपोजिट एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। वो लोग जो एक दिन नहीं आज ही कहते हैं।
वो बिजनेस बनाना पसंद करते हैं बजाय इसके कि घंटों उस पर फिलोसोफाइज करें। एक्शन हीरोज बेसिकली। सल्फर की मेसीनेस और डिसऑर्डर नक्स वोमिका को बहुत परेशान करती है, जैसे टोनी स्टार्क को स्टीव रॉजर्स की नीटनेस। एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन आर्सेनिकम एल्बम के साथ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये दोनों टाइप्स मेटिकुलस, एंग्शियस और कंट्रोलिंग हो सकते हैं। जैसे वो लोग जो हर चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, लेकिन उनकी एंग्जाइटी का सोर्स अलग होता है। जैसे एक को एलियंस का डर और दूसरे को टैक्स रिटर्न्स का। आर्सेनिकम की एंग्जाइटी एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी और केओस और डेथ के डर से आती है। बेसिकली वो लोग जो हर स्नीज को एपोकलिप्स समझते हैं, उनकी फेस्टिडियसनेस एक थ्रेटनिंग वर्ल्ड में सेफ्टी की फीलिंग क्रिएट करने के लिए होती है। जैसे वो लोग जो हर चीज़ को सैनिटाइज करते हैं। नक्स वोमिका की कंट्रोल की ज़रूरत दूसरी तरफ इम्पेशंस और एफिशिएंसी की डिज़ायर से आती है। बेसिकली वो लोग जो एलिवेटर के बटन को बार बार दबाते हैं, उन्हें दुनिया से डर नहीं लगता, वो बस उसकी इम्परफेक्शन से इरिटेट होते हैं। जैसे वो लोग जो ग्रामर मिस्टेक्स पर फ्रीक आउट करते हैं। आर्सेनिकम अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्स्टेंटली वरी करता है, जबकि नक्स वोमिका अपने बॉडी को तब तक अब्यूज़ करता है जब तक वो टूट न जाए। बेसिकली एक हाइपोकॉन्ड्रियक और एक वर्काहोलिक। लाइकोपोडियम भी एक ऐसा टाइप है जो डिक्टेटोरियल और एम्बिशियस हो सकता है, अक्सर पावर पोजीशंस में देखा जाता है। जैसे वो लोग जो हर मीटिंग में बॉस बनना चाहते हैं। मेन डिफरेंस उनके कॉन्फिडेंस में है, एक असली और एक नकली। लाइकोपोडियम अक्सर डीप लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम से सफ़र करता है, जिसे वो ब्रवाडो के विनियर से कवर करते हैं। बेसिकली वो लोग जो मिरर में खुद से पेप टॉक करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डोमिनियरिंग हो सकते हैं, पर अपने सुपीरियर्स के साथ ऑब्सीक्वियस और टिमिड होते हैं। बेसिकली वो लोग जो बॉस के सामने बटरिंग करते हैं। नक्स वोमिका इसके ऑपोजिट जेन्युइन अनवेवरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है। बेसिकली वो लोग जो हर सिचुएशन में कूल रहते हैं, उन्हें अथॉरिटी को चैलेंज करने से डर नहीं लगता अगर उन्हें लगता है कि वो सही है। बेसिकली वो लोग जो हर डिबेट जीतना चाहते हैं, वो हर किसी के साथ सेम ब्रस्क डायरेक्टनेस से डील करते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी पोजीशन हो। बेसिकली नो नॉनसेंस पीपल। लाइकोपोडियम फेलियर से डरता है, जबकि नक्स वोमिका इनएफिशिएंसी से डरता है। बेसिकली एक परफेक्शनिस्ट और एक प्रोक्रास्टिनेटर। ये कंपैरिजन्स नक्स वोमिका पर्सनालिटी की यूनिक फ्लेवर को हाईलाइट करते हैं, जैसे एक स्पाइसी डिश और एक ब्लैंड सूप। वो सल्फर के फिलोसॉफिकल इगोइस्ट्स नहीं हैं, आर्सेनिकम के इनसिक्योर परफेक्शनिस्ट्स नहीं हैं, या लाइकोपोडियम के ब्लफिंग कावर्ड्स नहीं हैं। बेसिकली वो अपने लीग में हैं। वो मटीरिया मेडिका के जेलस, प्रैक्टिकल और इम्पेशेंट रियलिस्ट्स हैं। बेसिकली वो लोग जो हर चीज़ को जल्दी और सही करना चाहते हैं। वो डर या ग्रैंड थ्योरी से मोटिवेट नहीं होते, बल्कि एक सिंपल पावरफुल अर्ज से मोटिवेट होते हैं कि चीज़ों को सही और जल्दी से किया जाए। बेसिकली वो लोग जो डन एंड डस्टेड में बिलीव करते हैं। इन डिस्टिंक्शंस को समझना एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग के लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये हमें एक सिंगल सिम्टम से आगे वाइटल फोर्स की सेंट्रल डिस्टर्बेंस को देखने में मदद करता है। बेसिकली ये एक मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने जैसा है। फैमिली लाइफ में नक्स वोमिका पर्सनालिटी वही इंटेंसिटी और ड्राइव लाती है जो उनके काम में होती है। मतलब घर भी उनका ऑफिस है और बच्चे उनके असिस्टेंट्स। ये अक्सर घर के सीईओ होते हैं, प्राइमरी ब्रेडविनर, फाइनेंस मिनिस्टर और कभी कभी होमवर्क पुलिस कमिश्नर भी। अपने लव्ड वंस को कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ देने में ये ऐसे प्राउड होते हैं जैसे किसी ने इन्हें पेरेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया हो। इनका प्यार एक्शन में दिखता है, डिनर बनाना, बिल भरना, कार की सर्विस, लेकिन आई लव यू बोलना वो तो शायद वाईफाई पासवर्ड जितना ही सीक्रेट है। ये वो पेरेंट हैं जो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पूरी रात जाग सकते हैं या ट्यूशन के लिए 2-2 जॉब्स कर सकते हैं। सुपर हीरो केप की जगह इनके पास है कॉफ़ी मग और टू डू लिस्ट। घर को वेल ऑनेल्ड मशीन की तरह चलाना इनका मिशन है। बिल टाइम पर, कार चमचमाती हुई और कैलेंडर पर हर इवेंट हाईलाइटेड। स्पॉन्टेनिटी वो तो शायद गुम हो गई है, लेकिन ये ऑर्डर और एफिशिएंसी कभी कभी घर में मिनी वर्ल्ड वॉर भी क्रिएट कर सकती है। नक्स वोमिका पेरेंट्स डिसिप्लिन के ब्रूस ली, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस और बिहेवियर के लिए एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई
कि एवरेस्ट भी शर्मा जाए। मेसी रूम, पुअर रिपोर्ट कार्ड या मुझे कुछ नहीं बनना वाला एटीट्यूड। इनका ब्लड प्रेशर सीधा रॉकेट मोड में। एक पेशेंट ने तो सीधा पूछ लिया, मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं, लेकिन वो मेरे ऊपर खड़े हुए बिना होमवर्क क्यों नहीं कर सकता? क्या ये कोई ओलंपिक इवेंट है? और जब बच्चा पल्सेटिला या फॉस्फोरस टाइप का हो, मतलब ड्रीमी रिलैक्स्ड, तो नक्स वोमिका पेरेंट्स का दिमाग 404 एरर दिखाने लगता है। पार्टनर के रूप में नक्स वोमिका लॉयल, डिपेंडेबल और कंट्रोलिंग, कभी कभी तो क्रिटिकल भी, जैसे हर चीज का रिव्यू देना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। पार्टनर की लाइफ को भी ऐसे मैनेज करते हैं जैसे कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो। डियर, तुम्हारी मीटिंग 3 बजे है और 4 बजे तुम्हें रिलैक्स करना है, मेरी परमिशन से। सोशल प्लान्स, शॉपिंग, करियर चॉइसेस, सब पर इनका फीडबैक फ्री में मिलता है। कपड़े क्यों खरीदे, करियर क्यों बदला, इनके सवाल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ये जानबूझकर क्रूएल नहीं होते। इनका दिल सच में मानता है कि इनका तरीका ही मास्टर प्लान है। अब सोचिए, अगर पार्टनर इंडिपेंडेंस और इमोशनल एक्सप्रेशन को वैल्यू करता है तो घर में रोज का ड्रामा पक्का, कंट्रोल बनाम फ्रीडम, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। नतीजा, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा टेंस कि लगता है कोई रियलिटी शो चल रहा है, बस कैमरा मिसिंग है। हर वक्त अर्जेंसी की फीलिंग, कोई तो कुछ प्रोडक्टिव करो। रिलैक्सेशन, वो तो शायद मिशन इम्पॉसिबल है। नक्स वोमिका के लिए घर पर चुपचाप बैठना सीधा टॉर्चर। सोफा पर बैठते ही दिमाग, चलो कुछ और कर लेते हैं। चेकबुक बैलेंस, जंक ड्रॉर ऑर्गेनाइज, वीक का स्केड्यूल, इनकी मी टाइम यही है। और हाँ, इरादे तो बहुत अच्छे होते हैं, एक स्टेबल सक्सेसफुल फैमिली यूनिट, बट कभी कभी घर से वार्मथ, स्पॉन्टेनिटी और मस्ती गायब हो जाती है। तो अगली बार जब घर में ऑफिस मीटिंग वाली फीलिंग आए तो समझ जाइए नक्स वोमिका मोड ऑन है। पेशेंस के शब्द अक्सर रेमेडी की सबसे विविड पिक्चर पेंट करते हैं। एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर जो डिबिलिटेटिंग टेंशन हेडेक्स के लिए मेरे पास आया था, उसने नक्स वोमिका माइंडसेट को परफेक्टली कैप्चर किया। उसने कहा, टाइम इज मनी। जब लोग प्लेजेंट्रीज में मेरा टाइम वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो जैसे डॉलर्स विंडो से बाहर उड़ रहे हैं। तब मुझे बस बॉटम लाइन चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन का ये स्टार्क ट्रांजैक्शनल व्यू प्योर नक्स वोमिका है। वह एफिशिएंसी को सबसे ऊपर मानता था और सोशल ग्रेसेस को एक अननेसेसरी और कॉस्टली डिले समझता था। उसके हेडेक्स इस रिलेंटलेस हाई स्टेक्स मेंटल प्रेशर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन थे। एक और पेशेंट, एक महिला जो एक केटरिंग बिजनेस चलाती थी, उसने अपनी इंटेंस इरिटेबिलिटी के बारे में बात की। अगर कोई सप्लायर 5 मिनट लेट हो जाता है तो मेरे अंदर रेज बिल्डअप हो जाती है जो पूरी तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। मुझे पता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन खराब हो गया। ट्राइफल्स के प्रति यह हाइपर सेंसिटिविटी, खासकर जब वे एक वेल लेड प्लान को डिसरप्ट करते हैं, एक क्लासिक नक्स वोमिका की नोट है। रेमेडी ने उसे एक ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद की, जिससे वह माइनर सेटबैक्स को एक्सप्लोसिव एंगर के बिना हैंडल कर पाई, जो उसे और उसके स्टाफ को एग्जॉस्ट कर रही थी। ओवरवर्क और स्टिमुलेशन का थीम कांस्टेंट है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने मुझे बताया, मैं कॉफी और एम्बिशन पर जीता हूँ। मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ, रात में अपनी बुक लिखता हूँ और 3 कमिटीज में बैठता हूँ। मैंने 10 सालों से कोई रियल वेकेशन नहीं ली है। मुझे एक मशीन जैसा लगता है, लेकिन अब मशीन टूट रही है। वह इंसोम्निया और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए मदद मांगने आया था, जो नक्स वोमिका लाइफस्टाइल के क्लासिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसने अपने बॉडी को अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस को सर्व करने के लिए एक टूल के रूप में देखा और उसे अपनी नेचुरल लिमिट से कहीं आगे धकेल दिया था। इस टाइप के लिए एक कॉमन स्टोरी है। फाइनली, एक आदमी जिसे मैंने सायाटिका के लिए ट्रीट किया था, उसने नक्स वोमिका की हिडन सेंसिटिविटी की एक झलक दिखाई। वह एक कंस्ट्रक्शन फोरमैन था, बाहर से टफ और ग्रफ दिखता था, लेकिन उसने कन्फेस किया, द थिंग दैट बॉदर्स मी मोस्ट इज इनजस्टिस। जब मैं किसी को चीट होते हुए या एक लेजी वर्कर को इससे बचते हुए देखता हूं तो मैं इसे सहन नहीं कर पाता। मुझे बोलना पड़ता है, भले ही इससे मुझे ट्रबल हो। ये उस इंटीग्रिटी के कोर को रिवील करता है जो अक्सर इरिटेबल एक्सटीरियर के नीचे होता है। नक्स वोमिका का एंगर अक्सर उस पर डायरेक्टेड होता है जिसे वे रॉन्ग, इनएफिशिएंट या अनफेयर मानते हैं, जो एक फायरी हालांकि कंटेंशियस मॉरल कंपास दिखाता है।
नक्स वोमिका वाले इंसान की जर्नी आग को सही दिशा देने की है। उनकी इनहेरेंट इंटेंसिटी, एम्बिशन और ड्राइव कोई कमी नहीं है जिसे खत्म किया जाए, बल्कि ये पावरफुल फोर्सेस हैं जिनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसे बैलेंस न किया जाए तो ये आग उन्हें अंदर से जला देती है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज, नींद न आना और सिरदर्द के रूप में सामने आती है। और इमोशनल स्टेट्स में लगातार चिड़चिड़ापन और तनाव रहता है। वे अपनी ही स्ट्रेंथ्स के शिकार बन जाते हैं और उन्हीं खूबियों की वजह से टूट जाते हैं जो उन्हें इतना कैपेबल बनाती है। उनकी हीलिंग का रास्ता आग बुझाना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से संभालना सीखना है। होम्योपैथिक रेमेडी नक्स वोमिका एक रेगुलेटिंग इन्फ्लुएंस के तौर पर काम करती है। यह कोई नई पर्सनालिटी बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को हेल्थी स्टेट में वापस लाती है। ये ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम को शांत करती है, रिएक्टिव गुस्से को कम करती है और बॉडी को सालों के अब्यूज से रिकवर होने देती है। एक हेल्थी नक्स वोमिका एक फॉर्मिडेबल फिगर होता है। वे अपना शार्प माइंड, डिसाइसिवनेस और काम करने की इनक्रेडिबल कैपेसिटी बनाए रखते हैं, लेकिन वे अब अपनी इम्पेशंस और इरिटेबिलिटी के गुलाम नहीं होते। वे बुलिंग के बिना लीड कर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाए बिना अचीव कर सकते हैं और अपने आसपास वालों को सफोकेटिंग महसूस कराए बिना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। रेमेडी के अलावा सेल्फ अवेयरनेस इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्रूशल हिस्सा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसीज को समझकर नक्स वोमिका वाले लोग अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीख सकते हैं। वे अपनी लाइफस्टाइल को मॉडरेट करने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। आराम के लिए टाइम निकालना, सब कुछ खुद करने के बजाय टास्क्स को डेलीगेट करना और उन लोगों के साथ पेशेंस रखना जो अलग रिदम पर काम करते हैं। वे यह समझना सीख सकते हैं कि लाइफ में सब कुछ एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता और रेस्ट, कनेक्शन और यहाँ तक कि स्लो डाउन होने में भी वैल्यू है। अल्टीमेटली नक्स वोमिका का गोल अपनी पावर को ग्रेस के साथ इंटीग्रेट करना है। ये सीखना है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ लगातार आगे बढ़ते रहने में नहीं है, बल्कि ये जानने में भी है कि कब रुकना है, कब सुनना है और कब यील्ड करना है। एक बैलेंस्ड नक्स वोमिका सोसाइटी के लिए एक ट्रेमेंडस एसेट है, एक डायनामिक और इफेक्टिव लीडर जिसके पास क्लियर विजन और उसे पूरा करने की एनर्जी है। अपने माइंड और बॉडी के बीच के रिफ्ट को ठीक करके वे फाइनली अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को एम्बॉडी कर सकते हैं, अपने पेन और पैशन को एक सस्टेनेबल और पर्पसफुल स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं।